I can see Raj is here, Shiva is here, Onkar is here. I cannot see other people. Shalish, can you tag other people like Darshini uh, and Bhavyansh? Hello. Acha, is my screen visible? Is my audio clear? Cool. Just a second. Cool. So, welcome to the Android course again. We have the 10th class, 10th session today, where we will be learning about the performance issues in Compose. Okay. Again, as I mentioned a couple of days earlier, अगर आप ये सेशन हमें 100% समझ में नहीं आता, 50% समझ में नहीं आता, even 20% भी समझ में नहीं आता, then it's completely fine, and I will say it's totally been designed on that way only. Okay, this topic is very advanced. Okay, and need lots of experience in order to first understand it and then fix it. Okay, but the reason why I've kept this topic is just to keep you all aware that this kind of things exist, and knowingly or unknowingly you will find it in the blog post or somewhere in my code or somewhere in other code, and then you can always understand why we are doing that. Okay, so just relax, lean back, and try to understand as much as things possible in this session. Okay, uh, just a second. Okay, so Uh, I will be sharing this link with you all. Okay, cool. Today we are gonna discuss about the performance and some internals of Jetpack Compose. Okay. Now, when I say internals, uh, Jetpack Compose internals by Jose Garcia. Just a second, George. Yeah. Okay. Okay. So this is the ultimate internal book written by GD in Android, where he has explained everything in a particular detail. Okay, even I have a PDF of this book. If you wanted, I can share with you all. But just sharing with you because basically this is everything you need to master the Jetpack composing. Okay, so things have been gone in very depth. Okay, but I will suggest you all to understand the basics first, have the very overview, then you can always buy it if you want, and if not, then I can provide the PDF to you for free. Okay, now coming back to the slides.
Today topic will be how we can improve the uh, Jetpack Compose code, or basically improve the recomposition. We can also do some performance check. Okay, we will learn about how you can improve the performance by doing the simple task. Okay, and understand little bit of internals of Jetpack Compose. Okay, so I believe until now we are aware कि Jetpack Compose, I mean एक composable का लाइफ साइकिल क्या होता था, राइट? हमने पिछले 2 कॉल्स में सीखा था कि Jetpack Compose का लाइफ साइकिल कैसा रहता है. ओके, मैं फिर से इसको एक और बार समझाता हूँ. ओके, सो basically if you see the dialogue itself, uh, a composable comes to the screen, compose, okay, and leave the composition. But if the state gets changed, okay, the composable get redrawn again as many as time the state has been changed. Okay, now as far as you keep writing more composable code, आपको समझ में आएगा कि बिना स्टेट चेंज हुए भी चीजें रिकम्पोज हो रही होगी. ओके, so it's all how vividly you write Jetpack Compose code. Okay, but we understood कि this composable generally can recompose as many as time as possible. Okay, uh, and before coming to the composition state, we have a initial composition state as well. Okay, जिसमें बेसिकली क्या होता है, if I go to the phase, okay, basically initial composition state consists of those three uh, those three uh, uh, basically checkpoints, I can say. Okay, so uh, we will have a look into this. So composition basically, okay, let's see. Compose determine what to show. It runs composable function and builds the UI tree. Okay, so if I share this diagram again, I believe you have seen it in many of my sessions. मान लो आपके पास एक रो है, okay, which have two items. Okay, one is the image, okay, and one is the column. Okay, and this column again have two text fields. Okay, जो ये एग्जांपल हम लोग हमेशा से देखते आ रहे हैं. Okay, now at the initial composition of this thing, okay, what Jetpack Compose compiler, runtime compiler do, it creates and identify what will the UI will look like. Okay, तो वो समझता है कि हाँ भाई एक ऐसा ट्री बनेगा, एक एलिमेंट यहाँ है. ओके, एक एलिमेंट यहाँ है, इसके दो एलिमेंट है, इसका एक एलिमेंट. ओके, बेस्ड ऑन द टी डेटा स्ट्रक्चर इट विल अंडरस्टैंड कि ये चीजें एग्जिस्ट करती है. ओके, नाउ it will do the calculation of the offset and the कि कितना उसको फिट होना है और कहाँ पे होना है. दिस इज टू थिंग्स. ओके, लाइक फॉर एग्जांपल दिस इज अवर मोबाइल फोन. ओके, दिस इज अवर स्क्रीन. एक रो को हमने कैसे मॉडिफायर्स के थ्रू प्रॉपर्टीज दी है उसके बेसिस पे कंपोजिशन होगा. देन द अदर थिंग विल हैपन दैट द लेआउट विल बी डिजाइन. ओके, कि कहाँ पे क्या क्या ड्रॉ होगा. ओके, कहाँ पे क्या क्या ड्रॉ होगा. ओके, सो फॉर एग्जांपल रो में मैंने मॉडिफायर को रैप कंटेंट साइज एंड विड्थ दिया है. ओके, तो ये सारे कंटेंट का कैलकुलेट करके उसको पता चलेगा कि मेरे को इतना ही कंटेंट लेना है. ओके, लेट्स अज्यूम. ओके, देन व्हेन द ऑन ड्रॉन विल बी कॉल्ड, देन इट विल सी कि कहाँ पे इसको ड्रॉ होना है. ओके, सो इट विल बी समथिंग लाइक दिस. ओके, सो बेसिकली इफ आई ब्रेक इट डाउन, पहले अपन देखते हैं कि कितने एलिमेंट हैं.
ओके, फिर देखते हैं कि उनका साइज कितना होगा। ओके, देन साइज वाइज सब डिफाइन हो जाता है, तो अपन देखते हैं कि स्क्रीन में प्लेस कहाँ होगा। ओके, दीज आर द 3 स्टेप्स ऑफ अ कंपोजिबल ट्री। ओके, लेट मी नो आर वी गुड टिल हियर, कि हमें समझ में आया what is composition, what is tree, how we select the size, and how finally the UI is been drawn. Okay, so these three things is nothing but that only. तो कंपोजिशन में हम दिखाते हैं व्हाट टू शो। ओके, देन लेआउट में अपन बेसिकली इस चीज को अगर मैं थोड़ा सा जूम आउट करके एक अच्छी स्क्रीन में समझाऊं। ओके, सो व्हेन वी क्रिएट दिस, तो कंपाइलर को पता चलता है कि लेआउट विल लुक समथिंग लाइक दिस। ओके, समथिंग लाइक दिस। ओके, ये इस इतने ट्री का हम ऐसे बनेगा। ओके, दिस इज द लेआउट पार्ट, एंड ऑन द ड्राइंग पार्ट वी जनरली इसको यूआई में शो अप करते हैं। ओके, सो while reading you will understand it more. I will share some resources, official links of Android developers where they have explained it in a proper detail. Okay, so generally uh, when we change the properties, change the state, then what happens when we change the property or the state, the on draw method, the on layout method gets changed. Okay, and when these things change, the recomposition happens, the composition gets changed. Okay, हमारा गोल ये है कि हम चाहेंगे कि इस ट्री में जितने कम नोट्स में चेंज हो, मान लो मेरे को टेक्स्ट चेंज करना है, तो मेरा टेक्स्ट ही चेंज हो, ना कि पूरा रो चेंज हो। ओके, मान लो मेरे को कॉलम चेंज करना है, तो कॉलम चेंज करूंगा तो ये दो कंपोनेंट ही बस रिकम्पोज होने चाहिए, रो और इमेज नहीं होना चाहिए। ओके, ओके, अगर अपन ये चीज अचीव कर लेते हैं, देन वी आर सेफ टू से कि अवर कोड इज परफॉर्मेंट। ओके, बट अगर हम अच्छा कोड नहीं लिखते हैं, ओके, हम बहुत सारा रिकम्पोजिशन होने दे रहे हैं, उसको नहीं संभाल रहे हैं, तो आपका ना यूआई थोड़ा सा जैंकी टाइप का हो जाएगा, मतलब ऐसे अटका अटका टाइप का दिखेगा। ओके, स्लो स्लो दिखेगा। ओके, एंड सेकेंडली आपका ऐप बहुत बैटरी खींचेगा। ओके, और थर्डली आपका ऐप छोटे डिवाइसेस में नहीं चल पाएगा उतने अच्छे से, और जैंकी हो जाएगा। ओके, एंड वी डोंट वांट टू डू दैट। Okay, so this is the very basics of things. Okay, we're gonna see more depth of it. Okay, but we have to understand how things get populated. Okay, now cool. Now there is another concept of stability in compose. It is much 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 more advanced level of jetpack compose stuff that we don't have to worry about. Okay, for the time being आप ऐसे आंख बंद करके बिना डॉक्यूमेंट देखे जब तक आप कुछ कॉम्प्लेक्स जेटपैक कंपोज नहीं बना ले रहे विच कंटेन एनिमेशन, रिस्पॉन्सिवनेस एंड परफॉर्मेंट कोड, अगर ये सब नहीं हो रहा है ना, तो आपको ये अभी सिर्फ इसके बारे में वरी होने का जरूरत नहीं है। ट्राई टू अंडरस्टैंड। ओके, सो जनरली क्या होता है, इफ देयर हैव बीन प्रेजेंट हियर, ओके, सो जनरली क्या होता है, देयर आर अ कंसेप्ट ऑफ स्टेबिलिटी। ओके, जितना स्टेबल रहेगा चीजें, उतना वो रिकम्पोज कम होगा। ओके, इफ द वैल्यू डेट वी आर पासिंग टू अ चिल्ड्रन कंपोजिबल, अगर वो बहुत बार चेंज हो रही है, तो द रिकम्पोजिशन ऑफ द फॉलोइंग चिल्ड्रन composable will be much much more. Okay, so to achieve the stability and avoid the recomposition, we generally have those few terms that we can add explicitly to make it more better. Okay, but एक बहुत बड़ा इसमें कंडीशन है that I'll gonna showcase in a minute, but let's just
try to understand it. Okay. So if a composable has a stable parameter that have not changed, compose will skip it. Okay. मतलब अगर कुछ चीज हमारे पास स्टेबल है और कुछ चीजें चेंज हुई है चेन में, ओके, एंड वन ऑफ द कंपोजेबल इज यूजिंग द स्टेबल पैरामीटर, तो वो रिकम्पोज नहीं होगा। सीधी सीधी सी बात है। भूकंप आया है, किसी के घर के नीचे शॉक वेवर्स लगे हुए हैं that help us to maintain the stability of a building। कितना ही भूकंप आए, आजू बाजू में नहीं लगे तो आजू बाजू वाली बिल्डिंग गिर जाएगी, बट जिसमें शॉक अब्जॉर्बर और सब लगा हुआ है वो नहीं गिरेगी। ओके। तो जितना स्टेबल बिल्डिंग रहेगा और जितने अर्थक्वेक आ जाए उसको फर्क नहीं पड़ेगा। ओके। Similarly, unstable parameters. If a composable have unstable parameters, compose always recompose it when it recompose the component parent. Okay. So अगेन, अगर हमारे कंपोजेबल स्टेबल नहीं है, अगर वो rather being a well, okay, a well is something जो हमने फर्स्ट क्लास में सीखा था। ओके, वेल इज समथिंग दैट डजंट चेंज। ओके, अगर हमारे पैरामीटर्स वेल है, मतलब एक बार वैल्यू दे दिए वही चला रहे, तो वो ज़्यादा अच्छी बात है। बट अगर मेरा वेरिएबल जो मैं यूज कर रहा हूँ इज अ काइंड ऑफ अ वेर, तो उससे होगा क्या कि रिकम्पोजिशन बहुत बार होगा, राइट, क्योंकि दिस वैल्यू कैन चेंज। ओके। सो दैट्स वन ऑफ द थिंग्स। अदर थिंग्स इज कि हमने, आपको याद होगा हमने पढ़ा था अबाउट द टर्म म्यूटेबल्स एंड इम्यूटेबल्स, राइट। मैंने आपको कहा था कि जब सारा चीज म्यूटेबल कर लेता है देन व्हाट्स द यूज केस ऑफ द इम्यूटेबल्स, राइट। नाउ नाउ व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट परफॉर्मेंस, देन वी कम टू नो कि नहीं भाई, इम्यूटेबल लिस्ट होना बहुत ज्यादा परफॉर्मेंट है। ओके। मान लो आपके पास एक यूआई है, ओके, आप नेटवर्क से डेटा फेच कर रहे हो और आपने उसको म्यूटेबल लिस्ट में रख दिया। ओके। फॉर सम केसेस रिकम्पोजिशन हुआ, ओके, एंड कंपोजेबल को पता चलेगा क्योंकि आप म्यूटेबल लिस्ट इस्तेमाल कर रहे हो, तो आपकी क्लास स्टेबल नहीं है। ओके, क्योंकि ये चीज कभी भी चेंज हो सकती है। ओके, आपकी क्लास स्टेबल नहीं है, तो हो सकता है कि आपका जो लेसी कॉलम है जो आप यूज करके लिस्ट दिखा रहे हो, वो स्क्रॉल होने पे रिकम्पोज हो। ओके, वो रिकम्पोज हो। ओके। बट अगर आप म्यूटेबल की जगह इम्यूटेबल लिस्ट इस्तेमाल कर रहे हो, तो वहीं आपका परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। ओके। सो those small things plays a very vital role in adding the performance of your Android application. Okay। अच्छा, एक ज्ञान की बात और बताऊं जो सुन के आप बोलोगे भली भांति हमारा ट्यूसडे खराब कर दिए। ओके, चलो बताता हूँ। द रीजन बीइंग the performance comes to the very senior engineers or person with the experienced engineers or people who holds the uh, knowledge of the dev is that कि उनको पता है कि कहाँ पे परफॉर्मेंस इशू आ रहा है, कहाँ पे नहीं। ओके। तो व्हाट आई मीन बाय दैट इसकी रिकम्पोजिशन हो रहा है नहीं हो रहा है, और उसके कारण परफॉर्मेंस इशू आ रही है कि नहीं आ रही है, दोज आर टू डिफरेंट। ओके। हाँ, जनरली ये ट्रू है कि आप जितना रिकम्पोजिशन कम करोगे उतना आपका परफॉर्मेंट रहेगा, पर क्या पता आपका यूआई ऐसा हो जिसको रिकम्पोजिशन की बहुत नीड हो और आप में उसमें कुछ कुछ तिगड़म लगा के उसको इम्यूटेबल और स्टेबल कर दिए, बट वो फंक्शनैलिटीज नहीं पूरी कर पा रहा है जिसके लिए वो कंपोजेबल बना था। मान लो आप एनिमेशन बना रहे हो which involves moving in and out of lots of components। ओके, बार बार इन हो रहा है, बार बार बाहर हो रहा है, तो क्योंकि वो चीज़ मूव हो रही है, उसका मेजरमेंट, उसका लेआउट चेंज होते जा रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है रिकम्पोजिशन होगा। बट आप उसमें कुछ जुगाड़ लगा के कुछ कुछ करके उसके स्टेट को कुछ कुछ करके आप रोक दे रहे हो उसका रिकम्पोजिशन, तो होगा क्या
कि आपका जो एनिमेशन जो आपने बनाया था वो काम नहीं करेगा, यहाँ के रुक जाएगा, यहाँ के रुक जाएगा। ओके, तो वी डोंट वांट टू डू दैट। ओके, सो आप ये सारी चीजें तभी करना जब आपको लगे कि वी आर फेसिंग अ परफॉर्मेंस डेप्थ इन अवर कोर्सेज। ओके, एंड दैट कम्स विद अ लॉट्स ऑफ एक्सपीरियंस। ओके, ओके, तो मैंने आपको अभी व्हाट इज कंपोजिबल लाइफ साइकिल का एक और ब्रॉड व्यू दिया। मतलब एक कंपोजिबल के बारे में ना बताते हुए मैंने आपको पूरे ट्री के बारे में बताया। ओके, नाउ अदर थिंग आई मेंशन कि कैसे with few things how we can make our composable to not recompose uh, unnecessary, right? So that was it for these two slides. Okay, now coming back uh, to this information. Okay, if you read the documentation you will find those data over there, so I will just read it out it for you. So composable function can execute in any order. Okay, so मान लो इसको मैं मिटाता हूँ थोड़ा। ओके, I don't know why people are leaving and joining again. Shiva have left the call. Okay. Shiva, Harsh, are you facing some tech like internet difficulty? Cool. Okay, so the first point is that composable functions can execute in any order. Okay, so let's say अरे just a second. Okay, okay, अब मेरे पास यहाँ पे रो है। ओके, फिर रो रो में कुछ एलिमेंट्स है, अज्यूम कर लो, फिर टेक्स्ट है। ओके, फिर एक इमेज है। ओके, फिर एक एनिमेशन ऑब्जेक्ट है। ओके, so इन कंपोजिबल इट इज नॉट वेरी मच डिफाइंड कि कौन चीज कैसे एग्जीक्यूट होगी। आपको देख के भले लग रहा होगा कि हाँ भाई ये लाइन से दी हुई है, कंपोजिबल्स हमने बनाए हुए हैं एंड हमें पता है कि जब भी हम कोड एग्जीक्यूट करते हैं तो इट गेट एग्जीक्यूटेड लाइन बाय लाइन, राइट? बट दैट इज नॉट ऑलवेज नेसेसरी विद द कंपोजिबल। ओके, हो सकता है कि एनिमेशन वाला ऑब्जेक्ट पहले क्रिएट हो जाए, हो सकता है इमेज वाला पहले क्रिएट हो जाए। ओके, हो सकता है इमेज वाला एकदम लास्ट में क्रिएट हो, क्योंकि इमेज बिट ऑपरेशन कैन बी लिटिल हैवी। ओके, हो सकता है कि रो बाद में ही इन्फ्लेट हो रहा हो क्योंकि उसके नीचे बहुत सारी चाइल्ड है। ओके, तो थिंग्स कैन वेरी, ऐसा नहीं है कि हमने इसको लाइन बाय लाइन दे दिया तो वो वैसे ही चलेगा, ये कहीं पे भी कभी भी कॉल हो सकता है। ओके, वी नीड टू एंश्योर अबाउट दैट। ओके, they can execute in parallel. Okay, so मान लो this raw data contains of lots of data and this image also contains lots of data. There can be possibilities कि ये दोनों एक बार में ही स्टार्ट हो जाए पैरेलली। ऐसा नहीं होगा कि पहले ये होगा फिर ये होगा फिर ये होगा फिर ये होगा। ऐसा होगा तो हमारे यूआई बहुत स्लो हो जाएगा, राइट? सो व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड कि ये कंपोजेबल्स कभी भी रन हो सकते हैं एंड देयर कैन बी पॉसिबिलिटीज कि पैरेलली भी रन हो सकते हैं, क्योंकि क्योंकि एट द एंड दोस आर बेस्ड ऑन द coroutines and based on the device it is running it can vary. ओके, तो कभी ऐसे फॉल्स इंप्रेशन में मत रहना कि मैंने लाइन बाय लाइन दिया तो लाइन बाय लाइन बनेगा। ओके, देयर कैन बी सम side effects or some other possibilities as well. Okay, recomposition skips as many composable functions and lambdas as possible. Okay, so आपको थोड़ी इंटरनल बात और बताता हूँ। जब हमारा कंपोजिबल बनता है, ओके, based on how we have defined the properties, whether it is immutable
एनोटेटेड और म्यूटेबल एनोटेटेड, क्या उसमें लैम्डा गिवन है, ओके, क्या उसमें वैल्यूज वेल टाइप की है, ओके, बेस्ड ऑन सर्टेन कंडीशंस, ओके, our composable can be of various type, okay, okay, one of the type is restartable composable, other type is skippable composable, okay, okay, other one is like non skippable or basically that will compose again and again, something is like unrestricted कि नहीं ये चेंज नहीं होगा, जो बन गया एक बार बन गया है, right? So based on the various things you provide, जब आपका कोड रन होता है कंपाइल होके, तो कंपाइलर उनको डिफरेंट डिफरेंट नेम दे देता है, ओके, कि ये स्किपेबल है, मतलब चीजें चेंज भी होगी तो हमें इस कंपोजेबल कोड को स्किप कर देना है अगले रिकम्पोजिशन साइकिल में, ओके, एंड कुछ कुछ कंपोजेबल रिस्टार्टेबल होती है, मतलब ये कंपाइलर को बताएगा कि कभी भी वैल्यू चेंज होगी तो इसके नीचे जितनी भी प्रॉपर्टी है इसको फिर से रिकम्पोज करना है, ओके। सो ऐसा नहीं है कि वहां पे इफ एल्स स्टेटमेंट लिखा हुआ है कि हाँ भाई ये प्रॉपर्टी है तो ऐसा रन करो, वो प्रॉपर्टी तो ऐसा नहीं, each composable holds some properties and been defined in that way in a compiler bytecode, and based on that whenever we do some runtime operations, things get recomposed or not recomposed based on that property given, ओके। जब आप डॉक्यूमेंट पढ़ोगे ना तो आपको स्किपेबल और रिस्टार्टेबल के बारे में और पता चलेगा, ओके, बट जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड कि ऐसा भी चीज होता है, इंटरनली ऐसे काम होता है, ओके। Now, as I mentioned, recomposition skip as many composable and functions and lambdas as possible. Okay, हम लोग इसको थोड़ा और डिटेल में देखेंगे। अब recomposition can also be cancelled। इसका मतलब ये कि मान लो आप एनिमेशन कर रहे हो एक लोडर का, ओके, दैट इज लोडिंग लोडिंग लोडिंग, जब भी लोड होता है तो कुछ चीजें रिकम्पोज होती है, ओके, एंड देयर कैन बी वेज कि uh, मान लो आपका लोडिंग से स्टेट सक्सेस में हो गया, ओके, एंड देयर कैन बी प्रॉपर्टीज की इसका लोड होना भी आधा और बचा था, ओके, और यहीं पे स्टेट चेंज हो गया, तो स्टेट चेंज हो गया तो क्या हुआ, कॉटलिन कंपाइलर ऑफ कंपोज ने बोला भाई इसका रिकम्पोजिशन रोको क्योंकि अब स्टेट चेंज हो गई है, ये जितना भी इसका प्रोग्रेस जो भी था इसको रोको, एंड जो हमें यूआई में दिखाना है वो दिखाओ, ओके। तो रिकम्पोजिशन कैन गेट कैंसल इन बिटवीन, ओके, एंड मैंने ये पिछले क्लास में बताया था कि रिकम्पोजिशन कैन हैपन इवन 100 टाइम्स पर सेकेंड, ओके, अगर 100 बार भी वो रिकम्पोजिशन कॉल हो सकता है, और आपने अगर अपनी एपीआई कॉल अच्छे से नहीं दी है तो हो सकता है कि आपके सर्वर में एपीआई कॉल 100 बार चले जाए, ओके, भले आप डेटा को एक ही बार यूज कर रहे हो, पर 100 बार एपीआई कॉल चले जाएगी तो आपके एडब्ल्यूएस का खर्चा ज़्यादा आएगा आपके बैकएंड इंजीनियर पे, और हो सकता है कि गलत कोड आप लिखो और बैकएंड इंजीनियर फायर हो जाए, ओके। तो हमें ये नहीं करना है, वी हैव टू मेक श्योर ऑफ दैट, ओके। नाउ कंपोजिशन रिकम्पोजिशन तो बहुत हो रहा है, बट कॉज ऑफ रिकम्पोजिशन मैंने जैसे बताया देयर कैन बी मैनी, ओके, जैसे आपको ये मैंने दो चीज इसलिए डालें आपको समझाने के लिए कि द यूआई वर्क्स लाइक दिस, ओके, जैसे ये चीज एक बार चालू हो रही है और ये चीज पहले ही चालू हो चुकी थी, बट हम रिकम्पोज करते हैं तो ये इसके ऊपर आ जाती है और चीजें वापस स्टार्ट होती है, राइट। तो यू कैन सी थोड़ा सा जंक इफेक्ट दिख रहा है, राइट, ऐसे सिंक्रोनाइज नहीं दिख रहा है, जंक इफेक्ट दिख रहा है कि ये भी चालू हो गया, ये लेट चालू हो रहा है, ये पहले खत्म हो रहा है बाद में खत्म हो रहा है, राइट। सो a recomposition generally look like this to the user if it is very slow, okay। So
कॉज ऑफ रिकम्पोजिशन मैं फिर से बता देता हूँ। कॉज ऑफ रिकम्पोजिशन बहुत सारे हो सकते हैं। मान लो आपने पैरामीटर बदल दिया, ओके, आपने जो स्टेट कंपोजेबल को देनी थी, ओके, हमारे पास एक कंपोजेबल था ए करके, ओके, उसमें कुछ स्टेट थी, ओके, ऑफ लेट्स से ऑफ टाइप स्टेट, ओके, इंट टाइप का, ओके। तो मान लो ये स्टेट की वैल्यू बार बार चेंज हो रही है, आप काउंटर काउंटर एक काउंटर बटन है जिसको दबाने से this state is changing. So whenever you hit the state, there can be a possibilities कि जितने बार स्टेट चेंज हुई वो उतने बार तो कॉल होगा ही होगा, ओके। एंड ऑल्सो देयर कैन बी पॉसिबिलिटीज कि आप मान लो काउंटर बटन दबाते जा रहे हो और आप अपनी स्क्रीन को भी बड़ा करते जा रहे हो, ओके। तो टैबलेट में ये ऑप्शन रहता है, यू कैन इंक्रीज डिक्रीज द साइज ऑफ योर ऐप एंड यू कैन परफॉर्म, ओके। आप ऐसे करते जा रहे तो हो सकता है ये कंपोजेबल, रेदर बिन आपने इसको 10 बार टाइप किया है, ये कंपोजेबल हो सकता है कि 100 बार कॉल हो जाए, ओके। So decomposition not only depend upon the state but the environment as well. Okay, मान लो इसका पेरेंट चेंज हो रहा है, कंपोजेबल ए का पेरेंट कंपोजेबल वन है लेट्स से, ओके, और वो चेंज हो रहा है, ओके, और इसको हमने अच्छे से स्टेबल मार्क नहीं किया है, तो होगा क्या, ये फिर से रिकम्पोज होगा। और जब भी चीजें रिकम्पोज होती है तो रीड्रॉ होती है, री इवेल्युएट होती है, रीड्रॉ होती है, ओके। So cause of decomposition can be an cause of decomposition. Okay. Now, but अगर इतने सारे कॉज हैं, इतनी सारी इश्यूज हैं, तो कहीं ना कहीं से तो हमें डीबग करना पड़ेगा, राइट। हमें पता तो चलना चाहिए कि चीजें हो क्या रही। अगर हमें पता नहीं चलेगी तो हम फिक्स नहीं कर पाएंगे, राइट। सो मैंने ये सिंपल लेआउट बनाया हुआ है, ओके। Now, in our there are actually various tools apart from the Android Studio, which we're gonna discuss when we are building some complex layout. Okay, but this is a simple layout with the column has been provided as the max width. Everything has been center oriented, and uh, a state that maintains of type string, okay, and on the button click I am updating the value of the state, okay, and there is a composable which is showing the current selected value, okay. By default it is comic, so it is showing comic, okay. uh, okay. So if I change this, you can see the value of over the things is getting changed, okay. Now एकदम कोंटी में एकदम छोटा सा बटन इन लोग ने दिया है, आई डोंट नो फॉर व्हाट रीजन, ओके। पहले यहाँ पे हुआ करता था इसका ऑप्शन, द लेआउट हैज बीन चेंज, ओके। यू कैन ऑलवेज गो हियर एंड गो टू दिस, ओके। तो यहाँ पे एकदम छोटा सा बटन दिया है, दैट इज लेआउट इंस्पेक्टर, ओके। आप यहाँ पे जाओगे, ओके, लेआउट इंस्पेक्टर, शो रिकम्पोजिशन, waiting for layout inspector to connect. uh, okay. OS is only, is it only for no, it is available for the device as well. Just a second guys, let me see why the, let me run it again, let me see. Okay, now it's been loading, okay, and been completed. So layout inspector say you can get the layout uh, of your composable hierarchy,
ओके। जैसे मैंने आपको ट्री बना के दिया था ना, वैसी ट्री आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। ओके। एंड इन दिस आई बटन सिलेक्ट ऑल द थिंग्स इफ यू वांटेड। ओके। सो मैंने सब चीज सिलेक्ट कर लिया है। सो इफ यू सी, अगर मैं व्यू मॉडल प्रैक्टिकल थीम प्रैक्टिस थीम में अगर क्लिक करूँ, तो यू कैन सी इट इज शोइंग एंड रिफ्लेक्टिंग द होल पार्ट ऑफ द ऐप। ओके। इफ आई सिलेक्ट द मटेरियल थीम, इट इज शोइंग द होल पार्ट ऑफ द ऐप। द रीजन बीइंग एज वेरी सिंपल, क्योंकि द अवर पेरेंट लेआउट इज दिस थीम कंपोजिबल, उसके अंदर एक स्कैफोल्ड है जिसको मैंने मॉडिफायर के थ्रू फिल मैक्स साइज दिया हुआ है। फिल मैक्स साइज मतलब हॉरिजॉन्टली भी एंड वर्टिकली वो पूरी जगह लेगा। ओके। Now, if I go to the column, you can see the column is taking the only width, only height which is required, but taking the full width. Okay. अगर मैं इसको wrap content size कर दूँ, okay, and rerun करूँ, so you can see it is now the content size is taking only this part. Okay. So I'll just revert it back. Okay. Okay. Now it is showing me a text जो मैंने composable बनाया था, this one. Okay. Showcase the selected item, and it is showing me the button with different attributes. Okay. So if I select a button, you can see मैंने लास्ट वाला बटन दबाया है, द टेक्स्ट गॉट रिकम्पोज वन टाइम। ओके। एंड दिस बटन गेट रिकम्पोज फॉर द टू टाइम। ओके। even if I press this one and press the above one, okay, you can see though I have clicked it on the one time, but it is getting recomposed two times. Okay. And whatever things you have seen here in the in this next column is the number of composable that has been skipped, मतलब वो recompose नहीं हुए। The reason being because they are not the part of the change state, and वो चीज डिकम्पोज नहीं हुई। ओके। तो मैं जब एक बटन दबा रहा हूँ एंड उसके कारण अगर ऊपर वाला चीज डिकम्पोज हो रहा है, तो इट डजंट नीड टू अफेक्ट द अदर टू बटन। ओके। सो बाय यूजिंग दिस लेआउट इंस्पेक्टर, जब आप एनिमेशन डालोगे, जब आप अपना लिस्ट डालोगे, जब आप वेरियस काइंड ऑफ कंपोजेबल डालोगे, तब आप अपने छोटे छोटे कंपोजेबल्स को यहाँ पे चेक कर सकते हो कि वो कैसे परफॉर्म कर रहे हैं बेस्ड ऑन द डिफरेंट लेआउट। ओके। ये एमुलेटर के अलावा भी रियल डिवाइस में अवेलेबल है। ओके। ओके। सो आपको क्या ये चीज समझ में आई अभी तक जो मैंने शेयर किया? व्हाट अबाउट अदर? ऑन कार को भी समझ में आया, दैट्स प्रीटी ग्रेट। दीपक को भी समझ में आया, दैट्स ग्रेट। शिवा, ओके ओके, शिवा में थम्स अप वाला बटन नहीं है, बट दैट्स आल्सो ग्रेट, नो वरीज। कूल। सो दैट्स हाउ यू कैन डीबग कि आपका कोड कितने बार रिकम्पोज हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ओके। एंड बेस्ड ऑन दैट वॉट एवर थिंग्स वी हैव लर्न कि इम्यूटेबल बनाना चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, आई विल डिस्कस इन अ डिटेल। बट based on certain little changes you can minimize the recomposition of your layout। okay। हाँ, बट ये सब चीजें करने से पहले आप चेक कर लेना कि रिकम्पोज हो रहा है कि नहीं हो रहा है। पता चला मैं बटन को 3-4 बार दबा रहा हूँ, रिकम्पोज उतनी बार हो रहा है जितनी बार होना चाहिए, और मैं लगा हुआ हूँ उसको परफॉर्मेंट करने में। सो दैट्स नॉट अ गुड प्रैक्टिस। जब चीजें खराब ही नहीं है तो उसको क्यों छेड़ना? ओके। सो इन प्रोग्रामिंग भी प्राउडली से भाई काम कर रहा है तो मत छेड़ो, देखते हैं। ओके। सो इफ इट इज वर्किंग डोंट टच इट। ओके। सो आपको पहले देखना है कि वर्किंग हो रहा है कि नहीं। ओके। कूल। नाउ I just show you how you can debug the recomposition. I will just show you how you can also fix it। okay। And once you fix it, you will definitely get a performance boost at your app। okay। So I will just go to the overview
okay, and and I have already shown you the different phase, okay. मैंने आपको ये चीजें पहले समझाई थी, okay. If I go to here, for timing I will say कि ignore the baseline profile, okay. Generally baseline profile एक concept है Android में कि आप चीजों को प्री बिल्ड डिफाइन कर सकते हो, जिससे आपके यूजर को स्मूथ फास्टर रीलोड मिले ऐप का, ओके. सो इट्स अ वेरी वेरी एडवांस टॉपिक, लेट्स नॉट लुक इनटू दैट. एंड मैंने स्टेबिलिटी का आपको बताया था कि एज मच एज पॉसिबल यू हैव टू मेक योर कंपोजिबल स्टेबल, जिसके लिए हमारे पास वेरियस टूल्स है, like stay at the rate stable, okay. And use the immutable types data type, okay. And based on that we can mark it as more stability, we can add more stability, okay. Now there are few points in the best practices section, we'll have a look into that, okay. uh, okay. So basically the first point is saying use the remember API to generally hold the state often composable rather than directly using into the composable. Okay, जैसे कि यहाँ पे लेजी कॉलम में आइटम्स यूज करके इसने कॉन्टेक्ट्स को यूज तो किया बट उसके साथ कुछ कुछ ऑपरेशन भी लगाया हुआ है, राइट. तो अब इसने यहाँ पे ऑपरेशन लगा दिया है, तो अब ये आइटम्स अगर रिकम्पोज होगा तो ये ऑपरेशन बार बार कॉल होगा, राइट. द ऑपरेशन इज नथिंग बट सॉर्टिंग का इसने कुछ ऑपरेशन लगाया. तो जनरली हम क्या करेंगे, हम वो सॉर्टिंग वाला ऑपरेशन को एक रिमेंबर फंक्शनैलिटी में डाल लेंगे, ओके. एंड जो भी हमारे पास उस स्टेट का लेटेस्ट वैल्यू आएगा उस पर्टिकुलर स्टेट का, उसी को हम यूज करेंगे. तो इससे क्या हुआ, उस लिस्ट के लिए अगर वो लिस्ट एट द रन टाइम चेंज हो गई तो वो चीजें वाली वापस कॉल होगी, एंड दैट दैट लेजी कॉलम इज पॉसिबल टू गेट कॉल्ड लेट्स से 10 टाइम्स. तो 10 टाइम्स कॉल होगा तो होगा क्या, ये सॉर्टेड विथ वाला फंक्शनैलिटी 10 बार कॉल हो जाएगा, बट चाहिए तो हमें एक ही बार, ओके. ये क्या हमें कोड दिख रहा है, ओके. सो हमारे पास एक composable है which is a contact list which takes few parameters, okay. and lazy column में वो आइटम्स में जहां अपन लिस्ट देते हैं ना कि भाई ये लिस्ट ले लो, ये मेरे को इन्फ्लेट कराना है, उसी जगह पे एक डेवलपर कॉन्टेक्स्ट को सॉर्ट कर रहा है ऑन द गो ओनली, ओके. मतलब प्लेन चल गया तो बोलता है उड़ते हुए मैं इसमें फ्यूल डालूंगा, ओके. दैट इज एंटायरली पॉसिबल बट इट इज स्टुपिडिटी, राइट. सो व्हाट आई एम गोना डू, मैं बोलूंगा कि उसी सॉर्ट वाली चीज को मैं एक वेरिएबल में स्टोर कर लूंगा यूजिंग द रिमेंबर लैम्डा, ओके. उसी चीज में मैं स्टोर कर लूंगा, और मान लो ये कंपोजेबल कितने बार भी कॉल हुआ, जब ये चीजें यहाँ पे सॉर्ट हो जाएगी, मेरे को वैल्यू मिलेगी, तभी मैं इसको कॉल करूंगा, तभी मैं लेजी कॉलम्स को इन्फ्लेट करूंगा. अब मान लो ओके, मान लो आपका लेजी कॉलम था, ओके. ये इतने आइटम थे, ओके. ओके, मान लो इतने आइटम थे. अब वो क्या कर रहा है, वो लेजी कॉलम के कंपोजिबल के अंदर ही ऑप्टिमाइज कंप्यूटेशन कर रहा है, सॉरी ऑप्टिमाइजेशन नहीं, कंप्यूटेशन कर रहा है कि मैं कुछ सॉर्ट करूंगा, ओके. होगा क्या, उसको यूआई में दिखेगा कि हाँ चीजें सॉर्ट होके आ रही है, बट हो सकता है कि लेजी कॉलम को अगर मैं स्क्रॉल करूं या मैं इस
एमुलेटर या स्क्रीन का साइज बड़ा छोटा करूँ तो हो सकता है ये लेजी कॉलम 10 बार कॉल हो जाए। तो ये 10 बार कॉल होगा तो जो जहाँ लिस्ट में मैंने फंक्शन लगाया हुआ है वो भी 10 बार कॉल होगा। ओके, और 10 बार कॉल होगा, इसको 10 बार 10 × 10 के आइटम्स मिलेंगे तो ये आइटम्स को 100 बार इन्फ्लेट कर देगा या रिकम्पोज कर देगा। ओके, तो हम वैसा नहीं चाहते। हम क्या चाहते हैं कि आ, हम इस कंप्यूटेशन को एक वेरिएबल में स्टोर कर लेंगे। ओके, जो जनरली रिमेंबर रिमेंबर वाली एपीआई में अपन करते हैं, लैम्डा फंक्शन। ओके, अब ये रिमेंबर की खास बात ये थी कि ये रिकम्पोजिशन को स्किप कर देता है। मतलब रिकम्पोजिशन जब होती है ना तो ये चीज बार बार कॉल नहीं होती। ओके, तो मान लो स्क्रीन का साइज बड़ा छोटा होता भी है, हमारे पास वैल्यू एक वेरिएबल में स्टोर है और उस वेरिएबल को अगर मैं लेसी कॉलम में इस्तेमाल कर लूँ तो मेरा रिकम्पोजिशन 100 से 10 बार हो जाएगा। राइट, तो यू कैन देन कैलकुलेट कि हमने कितना परफॉर्मेंस गेन कर लिया विद जस्ट हैविंग दिस सिंपल वेरिएबल। ओके, तो क्या अब समझ में आया? व्हाट अबाउट अदर्स? एनीबडी वांट टू वॉलंटियर अपार्ट फ्रॉम हर्ष, जिसको समझ में आया हो, दीपक, शिवा, कि हमने अभी क्या समझा है यहाँ पे? इफ एनीवन वांट टू वॉलंटियर। राज भाई, आप बताना चाहोगे? सर समझ में आया है बट वो एक्सप्लेनेशन के लिए उतना रेडी नहीं है, मतलब उतना प्रिपेयर नहीं कि सर उतना समझ में आया कि एक्सप्लेन कर पाऊँ। अच्छा, मेरे को बस अभी अनम्यूट मत, मतलब म्यूट मत करना। मेरे को बस इतना रिपीट करना मेरे मेरे साथ। हमें क्या ये जी समझ में सर। आया कि अगर मैं लेजी कॉलम के लैम्डा के अंदर कैलकुलेशन करूंगा और अगर स्क्रीन का साइज बड़ा छोटा होगा और ये लेजी कॉलम बार बार रिकम्पोज होगा तो ये कंप्यूटेशन भी बार बार होगी। इतना समझ में आया? यस सर। ओके, क्या हमें फिर समझ में आया कि इस कंप्यूटेशन को रेदर देन यूजिंग डायरेक्टली इन द लेजी कॉलम, अगर मैं रिमेंबर फंक्शन में डाल दूं जो रिकम्पोजिशन को स्किप कर देता है, तो इवन दो ये चीज बार बार बड़ी छोटी हो, ये तो कॉल एक ही बार होगा। अब जब ये कॉल एक ही बार हुआ है तो ये लिस्ट एक ही बार इन्फ्लेट होगी, मतलब बार बार रिकम्पोज नहीं होगी। तो ये समझ में आया? यस सर। हाँ, देन ऑल गुड। ओके। ओके, सो basically हमने rather than doing the computation inside a composable, we are doing computation outside the composable, then whatever the output we are getting we are using inside the composable। तो मैंने sorted contexts को बाहर एक वेरिएबल बना लिया, फिर मैंने उसको लेजी कॉलम में इस्तेमाल किया। ओके, एंड दैट वे आई एम एबल टू गेट द बेटर परफॉर्मेंस। ओके, कूल। देर इज अ कंसेप्ट ऑफ स्कीपिंग रिकम्पोजिशन जो मैं आपको पहले बता रहा था। ओके, तो जनरली क्या होता है, मान लो दो कंपोजेबल है। ओके, उनको अगर आप की एक की प्रोवाइड करो, अगर आप की प्रोवाइड नहीं करो तो कंपाइलर ऑटोमेटिकली एक की दे देता है। ओके, एंड वो दोनों जब रिकम्पोजिशन होता है ना तो वो चेक करता है कि जो मेरे पास प्रीवियस की थी इस कंपोजिबल की, क्या वही की है कि नहीं है। अगर वही की रहती है ना तो वो चीज़ों को स्किप कर देता है। ओके, व्हाट आई मेंट बाय दैट, ओके, जनरली जैसे मान लो आपके पास लेजी कॉलम है। ओके, आप उसमें आइटम्स को इन्फ्लेट कर रहे हो। ओके, उस आइटम्स को इन्फ्लेट करते वक्त आपने लैम्डा में अपना कंपोजेबल तो दे दिया, बट आपके पास एक ऑप्शन भी रहता है कि आप की प्रोवाइड कर सको। ओके, जब आप की प्रोवाइड करते हो ना, इट कैन बी एनीथिंग, इट कैन बी नेम, आईडी, स्ट्रिंग, एनीथिंग। ओके, तो जब आप उस पर्टिकुलर कंपोजेबल को जो इन्फ्लेट हो रहा है, ओके, मान लो इसको मैं थोड़ा सा यहाँ से समझाता हूँ।
कुछ भी बोलो, पर ये ड्रॉ वाला इन लोग ने व्हाइट बोर्ड बहुत बढ़िया बनाया है। यू नो दिस व्हाइट बोर्ड इज ओपन सोर्स, यू कैन ऑलवेज लुक इनटू द कोड ऑफ इट। और एक इंडियन ने बनाया है इसको, ओके, एंड इवन दैट अ वुमेन डेवलपर, ओके, सच अ ग्रेट बुक। सो नाउ व्हाट आई मेंट टू से, मान लो कि इस कंपोजेबल को, इन सारी लिस्ट को अगर मैं की दे दूं, 1 2, बहुत गंदा 2 लिख दिया, 1 2 3 4 5, ओके, 6 7 8 9, ओके। अब मान लो रिकम्पोज हुआ, मान लो कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो गया, कुछ हो गया, रिकम्पोज हुआ, ओके। तो जेटपैक कंपोज का कंपाइलर क्या करेगा, वो देखेगा कि प्रीवियसली इस कंपोजेबल की, मान लो ये लिस्ट आइटम 1 है, ओके, जिसकी की 1 है, ये देखेगा कि भाई इसकी की क्या थी, ओके, ये देखेगा कि इसकी प्रीवियस की 1 थी और अभी भी इसकी की 1 है, तो मतलब इसको रिकम्पोज नहीं करना है, ये ऑल्ट सेट है, इसमें कुछ भी चेंजेस नहीं हुए, ओके। सो जैसे हम मैप में एक वैल्यू की दे देते हैं ना, की वैल्यू पेयर, ओके, की एंड वैल्यू, ओके, जैसे कि निकेत एज 24, ओके, हर्ष एज 19, ओके। अब निकेत यहाँ से जर्मनी भी चले जाए तो मैं तो रहूंगा 24 साल का ही ना, इस साल तक, 2024 तक, राइट। हर्ष भी भले कहीं पे भी चले जाए, लेट्स से लंदन चले जाए वो, तो वहां पे भी उसकी एज 19 ही रहेगी वीजा में, राइट। सो सिमिलरली जब कंपाइल टाइम में अच्छा, शिवा को नॉर्थ अमेरिका जाना है, नाइस नाइस, कूल कूल, जाओ जाओ भाई, बाहर जाओ, बढ़िया है। आई एम स्टिल लुकिंग टू शिफ्ट टू जर्मनी by the next year, let's see, okay। So what I was saying, हाँ, so जैसी ये की अगर सिमिलर रहती है, ओके, देन द कंपोजिशन गेट स्किप और वो उस चीज को रिकम्पोज नहीं करता है, ओके। सो इसको अब छोटा छोटा बात समझो, हमने कंपोजिबल को थोड़ा सा एक्स्ट्रा डेटा दे दिया कि इट्स एन स्टेबल टाइप, ओके, आईडी मान लो स्ट्रिंग है, सॉरी आईडी मान लो इंट है, मैंने इसको दे दिया तो कंपाइलर समझ जाएगा हाँ भाई इसकी आईडी है मेरे पास, ये ऑलरेडी रीड ऑन हो चुका है, इसको चेंज करने की जरूरत नहीं है, ओके। तो बस बस just by providing the key you can increase the performance of your composable, okay। आप लेजी कॉलम्स जब बनाओगे ना, जब हम फायरबेस वाला प्रोजेक्ट बनाएंगे तब आपको ये समझ में आएगा, ओके। देन वी गोना इम्प्लीमेंट दिस थिंग एंड दिस थिंग लाइव, ओके। ओके, कल मैंने डिराइव्ड स्टेट ऑफ चीजें समझाई थी, कल क्या किसी ने साइड इफेक्ट प्रैक्टिस किया? नहीं किया तो प्लीज शेयर दिस। ओके, तो आई विल हाईली रिकमेंड कि आप एक बार डिराइव्ड स्टेट ऑफ को प्रैक्टिस करो। इसको आप प्रैक्टिस करोगे, मैं आपको एक वीडियो भेजूंगा तो आपको चीजें समझ में आ जाएगी कि व्हाई इट इज बीन यूज्ड, ओके। इट्स एन साइड इफेक्ट दैट वी कैन यूज टू avoid unwanted recomposition, okay। Now this defer read as long as possible, इसको how can I explain, जनरली जनरली इसको मैं इस पॉइंट के बाद समझाता हूँ। अच्छा, पॉइंट ही गया, एक सेकेंड। अच्छा, पॉइंट इसी में, ओके। सो जनरली आप अपने कंपोजिबल में जितना रीड ऑपरेशन बाद में करते जाओगे ना, अपने चाइल्ड कंपोजेबल को देते जाओगे, जैसे मैं आपको उस दिन स्टेट होस्टिंग सिखा रहा था, राइट, कि रेदर देन यूजिंग द व्यू मॉडल डायरेक्टली, हम क्या करेंगे, ऑन क्लिक कॉल बैक बना देंगे, या फिर उस वैल्यू को हम छोटे कंपोजेबल में नीचे भेज देंगे, राइट। तो आप जितने लैम्डास बनाओगे
और जितना एलिगेंटली इसको यूज करोगे आपका परफॉर्मेंस ऑटोमेटिकली इम्प्रूव होता जाएगा. ओके, सो this thing will not get make sense right now, but generally try to inflate as many as lambdas uh, possible to your composable. Okay, आप पेरेंट पेरेंट में आपको डेटा मिल रहा है और आपको बहुत नीचे कहीं कुछ चीज दिखाना है. ओके, तो ट्राई टू सेंड इट वाया लैम्डा. Okay, rather than doing simple value. Okay, in that way you gonna increase the performance. Okay, अच्छा, एक चीज तो बताना भूल गया, चलो बता देते हैं. सबसे बढ़िया चीज आप परफॉर्मेंस के लिए क्या कर सकते हो, जिसके लिए 1 मिनट से ज्यादा नहीं लगता. आप अपने कंपोज का जो वर्जन है ना उसको डेली अपडेट करते रहो. आप जब उस चीज को अपडेट करते रहते हो ना, तो गूगल टीम आपके लिए पीछे से परफॉर्मेंस वाला कोड पुश करती रहती है. जब आप उनकी नई लाइब्रेरी अपडेट करते हो तो आपका कोड बाय एनी एफर्ट अपने आप परफॉर्मेंट होता जाता है. ओके, सो वन ऑफ द बिग थिंग दैट यू कैन डू to increase your performance drastically after like say 5 6 months, just update the version of your compose. Okay, and you are good to go. अब मैं इसमें और डिटेल में नहीं जाऊंगा. द रीजन बीइंग इट इज गेटिंग out of scope. Okay, मतलब this is a very advanced level stuff. People with experience generally deals with it, but uh, it's important to know about things how we can improve it. Okay, आप इस चीज को दिमाग में रखोगे तो you will get a better developer. Okay, so whatever I have explained you, give it a read. Try to do it in your composable. Okay, and you will see ki how drastically create a effect. Okay, so that was pretty much it for today from my side. Okay, now if you have any questions, खैर आप लोग तो पूछते नहीं हो, you already know the drill. If you have the questions you can drop it in the group and then we can have a discussion about that. Okay, now ये तो हो गया from my side. Okay, now uh, I will call you all alphabetically and would like to know the progress we have made till now on our assignment. Okay, so starting with the Deepak. Deepak, you can unmute yourself and tell more about your assignment. If possible, you can share your screen as well. Deepak, am I audible? यस सर. Yeah, go ahead. Share your सर screen and let सर me. अभी Hmm? सर अभी बस आइडिया है सर, अभी स्टार्ट तो नहीं किया हूँ. दिखाओ क्या आइडिया दिखाओ. Hello, यस सर. Deepak. You can show your idea, whatever you are building.